ओके, तो कम्युनिकेशंस, CSC 1 यूनिट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में आपने क्या, यू आर ए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, इससे पहले आप यहाँ पे फोर्थ में बल्कि फिफ्थ में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे बाय द नेम कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब वो नहीं है लेकिन पहले था। अब आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन में? एक तो आप पढ़ रहे हैं CCN, इसके अलावा आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसके अलावा मे बी क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग। So there are number of different courses that can be offered to you in the area of communication. Number two, you may be offered the area. This is the areas, and this is the subjects which are covering these areas. So the second one can be signal processing, signal processing, and in the field of signal processing, in this semester you are taking a course of signal systems. And in the next semester you'll be taking DCN, and in the next semester might be you may get the digital image processing, you may take the computer vision. So all of these courses are related to the signal processing. Then number 3 can be hardware design, and in the hardware design, from starting from your number 3 semester, where you started with the DLD, digital logic design, then you may have MBSD, you may have embedded systems, you may have embedded systems, you may have the advanced hardware design, advanced hardware design. So these are some of the courses which are in this area. Then, ladies and gentlemen, the fourth one can be AI and data science. And here again, you are maybe offered a courses like maybe somewhat something related to the machine learning, something related to the expert systems, something related to the neural networks, and neural networks को ही आप डीप लर्निंग भी कहा जाता है. So different subject can be offered to cover your AI and data science part. You may be offered some of the courses which are related to the DevOps, which means development, which means programming, starting from the semester number 2, where you are offered the basic programming, then the OOPS, data structure, system programming, operating system, all are from the programming perspective. So, but in this semester, my emphasis is on the to give you some guidance related to the, not only to teach you communications or networking, but also to give you some knowledge about some prospects about the communication and networking. Now the question is, one option is that you may consider, Kaniji, I should give you all this information. And the second option is, why not I should request some of my students who are working in the industry and they should give you the guidance. And probably you will be more happy with them. क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा इस वक्त इस इंडस्ट्री में, इस मुल्क में काम कर रहा है, इतनी सैलरी कमा रहा है, खुश है, नाखुश है, मोर बेटर आपको गाइडेंस दे सकते हैं. तो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने आपके लिए एक हमारा स्टूडेंट जो कि पिछले कई सालों से यूएई में काम कर रहा है एयरपोर्ट पे, और वहां पे नेटवर्क इंजीनियर है, तो उसकी कुछ, और इस वक्त वो मुझसे ऑनलाइन 2 कोर्सेज पढ़ चुका है. तो देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहता है. क्या कोई जॉब्स इस एरिया में है? नंबर 1, आपने क्या चीजें इसमें से ढूंढनी है, क्या जॉब्स हैं, नंबर 1. नंबर 2, अगर जॉब्स हैं तो सैलरी कितनी मिलती है, और किस तरह ये जॉब, अगर मैं नहीं कह रहा कि एवरीवन शुड गो टू द नेटवर्किंग, नो, that depend upon your interest. If you are interested, that's great. If you are not interested, go to something else. मतलब इवन हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो कि मिसाल के तौर पे लास्ट सेमेस्टर में एक लड़की है जो कि लॉ कर रही है. तो मैंने उससे कहा, बच्चे तू लॉ कर रही है तो तुम यहाँ पे आना के कोर्स करने की तुम्हें क्या जरूरत है? कहती है, नहीं, मेरा शौक तो यही था, वो तो मेरे पेरेंट्स का खानदान पूरा हमारा
वकीलों का है, तो उन्होंने कहा वकालत करो, लेकिन मेरा तो शौक नहीं है। दैट इज समथिंग बैड, कि जी उसका शौक नहीं है तो वो कैसे ना अच्छी वकील बनेगी, ना वो इधर की अच्छा कोई कर सकती है। इसी तरह कोई महीना पहले अप्रोक्सीमेटली एक और फीमेल आई कि जी मैं स्टेटिस्टिक्स में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने कोई साल का कोर्स लिया वेब डिजाइन का और मैं यहाँ भी करना चाहती हूँ। अगेन मैंने उसे कहा कि बच्चे जी आप स्टेटिस्टिक की एरिया में करो। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपना इंटरेस्ट खुद ढूंढना है। जैसे यहाँ पे किसी के स्टूडेंट ने, मुझे नहीं याद किसी ने आपके फोर्थ सेमेस्टर से कहा भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में है। तो वेरी सिंपल आंसर इज कि अगर एक काम आप करते हैं एंड यू फील कंफर्ट, तो दैट्स गुड फॉर यू। बट इफ इट इज बोरिंग फॉर यू, वो आपके लिए पिंच कर रहा है आपको हर रोज, इसका मतलब कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर यू देन। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इस इंजीनियर साहब का एक 2 से 3 मिनट का क्लिप, लेकिन उसमें से आपने क्या क्या चीजें ढूंढनी है, जॉब्स हैं कि नहीं, सैलरी कितनी है, हाउ टू गेट इट, और नंबर 4, क्या ये डिग्री जो आप कर रहे हैं दैट्स इनफ या नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ये 4 सवालों के जवाब आपने अगले 2 मिनट में निकालने हैं। So, ladies and gentlemen, I have recorded this and placed it on my YouTube channel. और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं योर वीडियोस, एंड here it is. तो प्लीज लिसन केयरफुली। अनलॉक योर फ्यूचर। और जहाँ तक तलक है जिस तरह प्रीवियस क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी जो करंट एरा है, जो यूई की मार्केट है, इवन मिडिल ईस्ट आप उसको कहते हैं, जीसीसी कंट्रीज इसमें यूई है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है और ओमान वगैरह का जितने भी ये चलता है। तो आप जो सिचुएशन चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और बाकी जितना भी टेक्नोलॉजी में बूम आ रहा है और जिस तरह से ग्रोइंग हो रही है इस सेक्टर्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा अभी जो मार्केट्स में जॉब ओपन है वो नेटवर्क से रिलेटेड आ रही है जॉब्स। और जॉब किस एरिया में आ रही है? नेटवर्क। पहला सवाल का जवाब उसने दिया। अगला देखते हैं। ये आप इसका अंदाजा इससे भी कर सकते हैं कि एक तो सैलरी वाइज इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी आप कह सकते हैं कि मिनिमम जो आप लेवल 2 का नेटवर्क इंजीनियर है या इस तरह वो 15 + 18 20,000, इवन इफ आप जी दोबारा सुने जी, 20,000 सुने। भी जो मार्केट्स में जॉब ओपन है वो नेटवर्क से रिलेटेड आ रही है जॉब्स। और ये आप इसका अंदाजा इससे भी कर सकते हैं कि एक तो सैलरी वाइज इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी आप कह सकते हैं कि मिनिमम जो आप लेवल 2 का नेटवर्क इंजीनियर है या इस तरह वो 15 + 18 20,000, इवन 15 to 20,000 धर्म, दैट इज द मिनिमम। तो अगर आप इस लेट इट बी, इवन अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल ही लेवल लोअर लेवल पे हूं, मेरे इतनी, लेकिन ये वो नहीं कह रहा है कि बस आप आओ और डिग्री आपके लिए सारे जो लोग हैं वहां खड़े हैं और एक एक आपको खींच के अपनी कंपनी में लेकर जाएगा, नहीं। दैट इज इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज, इफ यू हैव द नॉलेज प्लस स्किल। तो अगर ऐसे भी आप सबके पास मोबाइल मौजूद हैं, इवन इफ यू कंसिडर इट 15 विच इज द लोएस्ट मिनिमम, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉब्ली इस वक्त जो धर्म है वो 76 है। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताएं कितना मिनिमम बनता है। 11 तो जनाब अराउंड, चलें जी, तो हमें कहा गया कि मिनिमम टू मिनिमम जो है वो वहां पे सैलरी दी मिल जा रही है अबाउट 11 लाख प्लस। लेकिन वो कह रहा है दिस इज द मिनिमम, लेकिन इफ यू हैव मोर कैपेबिलिटीज तो फिर वो क्या कहता है, सुने। आप अगर जरा बेहतर अच्छे हैं तो 30 40 इवन 60,000 मेरे कोलीग भी हैं जो साथ में, मेरे ऐसे कुलीग्स भी हैं जो 60,000 धर्म भी
ले रहे हैं, लेकिन वो जिनकी स्किल्स, ये पर ईयर का क्या? ये पर मंथ का कह रहा है जी। ओके ओके, प्लीज सुने। 10 dirham सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि आप समझ लें कि 50-60 लाख से भी ऊपर पाकिस्तानी बन जाती। तो ये सारी चीजें अब कई दफा मैं, वो हमारे कोलीग्स जो हमारे साथ हैं, वो कुछ आईआईटी से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वहां आईआईटी, जैसे यहाँ पे आप लम्स की या नस्ट की एग्जांपल देते हो, इंडियंस में आईआईटी जो है एक बड़ा नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहता है वहां के लोग यहाँ पे आके जब काम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, गौर से सुने। इंजीनियरिंग की हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने एडवांस कोर्सेज इसमें, मतलब सीसीएनए किया, सीसीएनपी वगैरह किया। तो वो अब बात कर रहे थे कि ये एक कोर्स ने हमें इतना फायदा दिया जितना कि एक इंजीनियरिंग डिग्री ने हमें नहीं दिया, क्योंकि सारे का सारा इंजीनियरिंग डिग्री ने इतना नहीं दिया जितना कि हमें इस एक्स्ट्रा स्किल ने दिया। जो है इनकी जो अभी करंट जॉब है वो बेस करती है इसी कोर्स के ऊपर। और फिर उसके साथ में उन्होंने फिर और मजीद प्रोफेशनल कोर्सेज किए और ये सारी चीजें, तो ये सब करने के बाद वो खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी मतलब एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। और जो है उनका ईज है, आप जब एक अच्छा अर्न करना स्टार्ट करते हैं। और फिर प्लस ये एक ऐसी फील्ड है कि मोर अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, जैसे यहाँ पे अभी ट्रेन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, दुनिया में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सऊदी भी भेज सकते हैं, और ये सारी चीजें। इसलिए मैं सबको एडवाइस करूंगा कि मतलब जो ये कोर्स मैंने भी किया है, तो इससे काफी ज्यादा मुझे अपने जॉब से रिलेटेड काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के हवाले से, जो इंटीग्रेशन है, इंटरफेसिंग किस तरह होगी दूसरे सिस्टम्स के साथ में, जो प्रोटोकॉल्स कौन से इसमें ये चल रहे हैं कि, और फिर इनको समझने में बहुत सारा आपको एक बहुत एज मिलता है जब आपके तौर पर ये चीज है और वो हमारे वो चलती रहेगी। और अवेलेबिलिटी क्या, हम कहते हैं कि हर वक्त सर्विस अवेलेबल हो और इस तरीके से। तो ये सारी तो चीजें पहली चीज यहाँ पे हमें ये पता चली कि ये कहना कि भाई नौकरियां नहीं निश्ता, तनख्वाह के जीरो दे, डीन प्लाजा की 15,000 रुपये वालमा, दैट इज योर चॉइस। अगर आप इससे खुश हैं तो कोई भी आपसे ना खुश नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट समथिंग बेटर फ्यूचर, तो देन यू हैव टू सेक्रीफाई। और सेक्रीफाई क्या है कि आपने आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है। अपने अगले 2 साल में अपना कोई टारगेट रखने होंगे कि जी इन 2 सालों में क्या मुझे अचीव करना चाहिए। और अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर कई आगे आगे जाके कहता है कि इवन कई जगहों पे ये खुद कहता है कि जनाब मुझे आयरलैंड से यानी यूरोप से एक ऑप्शन मिला था, एंड आई वेंट देयर एंड आई नेवर अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो कहता है फिर उसके लिए क्या तरीका है, आप अपने रिज्यूमी को और अपने जो ऑनलाइन आपके प्रोफाइल हैं उसको अगर आप अच्छा रखें तो कई जगहों पे आपको अप्लाई किए बगैर भी बुला लिया जाता है। इवन आपने डिग्री भी नहीं ली होती तो आपको बुला लिया जाता है, क्योंकि आपके जहन में यह है कि जब तक डिग्री नहीं है तो उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, डिग्री के बगैर भी हो सकता है। लेकिन आपने ये दुनिया को बताना होगा कि यू आर समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव सम नॉलेज विच इज एक्स्ट्रा देन फ्रॉम अदर्स कंपेयर टू द अदर्स। क्लियर? तो ये तो हो गया आज के पहली बात। दूसरी बात आपसे ये डिस्कस करनी थी, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी आप इसको खुद अपने टाइम पे सुनना चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं। सर हम आप कहते हैं सर सर ये सर कहते हैं कमेंट भी करें, जो आपका दिल चाहे करें, जो दिल ना चाहे ना करें। ब्लैक ब्लैक एंड हियर इज आई एम कॉपिंग, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि जी प्लीज लाइक एंड शेयर एंड फला, बल्कि अगर मैं चाहूं तो ये नंबर, क्योंकि मेरे कई जो लेक्चर्स हैं वो प्राइवेट हैं, तो इसलिए इवन जो थोड़े बहुत कह लें कि ओनली 25% मेरे लेक्चर जो हैं वो फ्री हैं, पब्लिक हैं, बाकी जो हैं दे आर प्राइवेट। तो फिर भी आई हैव अराउंड मोर देन 25,000 सब्सक्राइबर्स एंड मोर देन 4,500 आवर्स इन ए ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। So gentlemen, here I can give you this प्राइवेट कोर्सेज को पहले पढ़ाना पड़ता है। सर पे करना होता है। जी बिल्कुल। मैंने भी तो उसके लिए मेहनत की है ना। आपको भी तो किसी ने फ्री में नहीं, मुझे भी किसी ने फ्री में नहीं दिए। Yes, sir. स्टूडेंट है कि बच्चों की जगह है। जी, मैं अपने बच्चों के लिए मैंने ये फ्री में रखे हुए हैं कि जी इस्तेमाल करो, और इतना है कि जिसको अगर वो भी आता है तो वो भूखा नहीं रहेगा, उसको नौकरी मिलेगी।
सर हमें ये वाली ज्यादा बातें करो। ये वाले के लिए ये देखें पीछे कोई टीम बैठी हुई है जो कि इनको आप लोगों के लिए अपलोड करती जा रही है। तो ये डू यू वांट टू बी इन द क्लास जेंटलमैन? मुझे दूसरा रूप भी है उसमें मत जाने की वो ना दें। एनी हाउ, तो हियर आर दी सम आर फ्रीली अवेलेबल, सम आर जैसे पब्लिक है, जो पब्लिक है वो देखें, और जो प्राइवेट ये पब्लिक है वो देखें, जो प्राइवेट है उसको मत सोचें। एनी हाउ, दूसरा चीज जो आपने कहा कि आपके लिए हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी आपके पास आपकी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करें। उसके लिए जेंटलमैन हमने आपके लिए एक और चीज शुरू की, और वो ये है, वापस आएंगी आज मैं नहीं करता होता लेकिन जाएंगे। ओके, तो ये आपको अभी नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि यूटी पिशावर इज पार्टिसिपेटिंग इन ए साइबर कप 2026, और आप लोगों के अपोनेंट आपका मुकाबले में कौन होंगे? स्टूडेंट फ्रॉम ई यूरोप, एमई मिडल ईस्ट एंड ए अफ्रीका। तो मुकाबला इनके साथ है। अब इसके लिए आपने पहले फेज में क्या करना है? अगर आप इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें। और वो है कि आपको हम एक रजिस्ट्रेशन का मेथड दिया, हमने आपको बताया कि आप करें ये, और लिखा हुआ है कि दिस फ्री। देखिए नीचे लिखा है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस। हाँ, अगर आप लेट हो जाते हैं फिर हम आपको कह सकते हैं खुदा हाफिज, लेकिन अगर आप जल्दी करते हैं तो वेल एंड गुड। तो जेंटलमैन यहाँ पे हमने अगेन ये आप ही के सीनियर्स हैं, इनकी एक वीडियो आपको दिखाता हूं और देखेंगे ये क्या कहते हैं। Guys, stop scrolling. UT Peshawar is joining the Cisco EMI Cyber Cup 2026. Hola between Cisco and Real Madrid. We gotta learn the tech behind Santiago Bernabeu, Wi-Fi 6 and network infrastructure. First, click on the link tree to enroll in the courses and then fill out the Google form to secure your spot. The deadline is 15th February. Enroll now. Spots are limited. Guys, stop scrolling. UT Peshawar is joining the Cisco. तो क्या कहा जी इन्होंने कि जी पहला काम ये करें कि ये मैं फिर आपके सामने ये शेयर कर देता हूं आपके लिए कि आप ये लिंक्स, बल्कि आपकी आप ही के उस पर पड़ा तो लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जेंटलमैन पहला काम ये करना है कि इस लिंक ट्री को क्लिक करें। ये लिंक ट्री को आपने क्लिक किया तो ये फ्री कोर्सेज आपके सामने जो ईमिया कप में हैं वो आपके सामने आ गए कि ये 6 कोर्सेज पे आपका पहला फेज है। इसमें आप आसानी ये है कि हमने आपके लिए सब कुछ कर दिया। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक दिस कोर्स ऑलरेडी, क्योंकि आपको मैंने पैकेट ट्रेसर के थ्रू नेटअकैड का हिस्सा बनाया हुआ है, तो इट मे आस्क यू योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप यहाँ लॉगिन पे जाके वही यूजर नेम और पासवर्ड इसको दे दें। मिसाल के तौर पे मेरा यूजर नेम ehsanhaq@gmail.com है। मैंने लॉगिन किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया, और फिर पासवर्ड के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन आएगा वो प्रेस कर देना है। तो विच मीन कोर्स नंबर 1 रजिस्टर्ड। इसी तरह देखिए गेट स्टार्टेड को क्लिक किया तो इट इज रजिस्टर्ड। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक में करते हो, लेकिन एक में इसका मतलब अगर उसमें आपका नाम ना आया तो यू आर आउट। इसलिए बेहतर है कि आप 6 के 6 में कर दो, कम से कम 1 2 3 में तो आपका नाम आ ही जाएगा। तो आपको जब ये आप कर लें 6 के 6 में, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसके बाद जैसे कि आपको उस वीडियो में बताया गया कि आपने ये गूगल का क्लास फॉर्म खोलना है, और इस गूगल के फॉर्म में आपने आपने अपना अपना ईमेल, जो कि इस वक्त ऑफिशियल हमने यूज किया तो आप भी ऑफिशियल यूज कर लें, योर नेम, योर व्हाट्सएप नंबर, योर इंस्टीट्यूशन नेम,
योर डिपार्टमेंट नेम, और जितने कोर्सेज आपने सेलेक्ट वहां पे क्लिक किए हैं उन सबको यहाँ पे टिक कर दें और सबमिट कर दें बस। तो आपका पहला काम हो गए। हो गया। फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कोर्सेज में कैसे आप पढ़ें और इनके एग्जाम्स हैं वो कैसे दें, जिसकी वजह से आपको सिस्को फ्री में सर्टिफिकेट दे देगा। तो इससे आपका रिज्यूमे भी बेहतर हो जाएगा, और इससे आप अपने अगर लिंक्डइन पे और इन पे डालते हो तो वो भी बेहतर हो जाएगा कि भाई आपकी प्रोफाइल कुछ कुछ वजन रखती है। तो पहला फेज में ये आपको फायदा। अगर आपको सेकंड फेज में अगर हम चले गए, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे लोग उनको नजर आता है कि जी में कंपटीशन का जोश है और ये यूरोपियंस के साथ, मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ, अफ्रीका के लोगों के साथ compete कर सकते हैं, तो वो हमें सेकंड फेज में डाल देंगे। फिर सेकंड फेज में आपने उनके साथ CTF बेस के ऊपर, जिसमें कोई टास्क आपको दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा, किसी यूरोपियन को भी दिया जाएगा, जो पहले कर लेगा वो विन कर गया। और अगर आप वो विन करते हैं तो वो सर्टिफिकेट की वर्थ रियली आपकी डिग्री से ज्यादा होगी, क्योंकि आप पूरी दुनिया को बताएंगे कि जी मैंने ये कप जीता हुआ है। और वो कप यूटी का नहीं है, वो कप केपी का नहीं है, वो कप पाकिस्तान का नहीं है, वो कप इंटरनेशनल है। तो आई एम इंटरनेशनल विनर। तो आपकी मर्जी, इफ यू आर फील के जी यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो वी कैन प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी ओनली। बट हम आपके लिए ये नहीं कर सकते कि जी कम भी दे। हम बैठ के आपके लिए सॉल्व भी करें। तो उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपका एक वो बन सके। तो जेंटलमैन यहाँ पे अभी मैं आपको, अगर आपके पास मोबाइल्स ही हैं तो मैं आपको कहूंगा मोबाइल ओपन कर लें। मैं आपको कुछ इंटरनेट यहां से दे देता हूं, विच इज बाय द नेम एहसानुल हक। जी 1 से 8 तक। और दूसरा आपको नजर आएगा, उसको भी मैं आपको दे देता हूं ताकि अगर आप करना चाहते हो, लेकिन ये बताता चलूं, ये देख लें कि कितने लोगों ने, आप ना सिर्फ आपके इदारे से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो लुक एट हियर। तो 549 प्रॉब्ली, अगर सही मुझे नजर आ रहा है तो कोई 550 तकरीबन लोगों ने ऑलरेडी इस पे अप्लाई किया हुआ है। और अगर 6 6 सब्जेक्ट में किया तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन 3000 के करीब रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास कम नहीं है, लेकिन अगर आप अपना फायदा देखना चाहते हो तो कर लो। अगर आप समझते हो कि नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। लेकिन मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया, और दूसरा मैं आपको सेटिंग्स में जाके इधर से भी प्रोवाइड कर देता हूं। जी 1 से लेके 8 तक। और आपको और दूसरा आपको नजर आना चाहिए C2 री 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 Realme C2 भी नजर आना शुरू हो गया है। उसका भी 1 से लेके 8 तक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक पे कनेक्ट करके, और अगर चाहें तो हो गया। हाँ, बैक जाएं, फिर दोबारा दूसरे के लिए जाएं, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, और ऑल 6 को कर एक में दें। नहीं कर सकते सर, एक दो में। नहीं, ये हो गया, ये ठीक है। ये हो गया। सर पास में वो ईमेल एंटर करके फिर वापस जाने वापस जाके दोबारा करें, दूसरा कोड। दूसरा कोर्स करें, तीसरा करें, चौथा करें, पांचवा करें, छठा करें।
Oh, use of audio.
ये सवाल की ये कौन सा कौन सा लैपटॉप है? डेल का। नहीं दिल का तो है ये कौन सी जनरेशन का है? कौन सी जनरेशन का है? प्रॉब्ली 7th जनरेशन का है, Core i7। Misael vi esperamos todos estos. Wala no. हम्म? Kaya Misael vi esperamos todos. Wala no. चलिए जी जल्दी करें, शाबाश। Ya pa gala खराब है. गला खराब. जो इस तरह में टीचर होते थे उनके साथ स्पीकर लेके घूमते थे और जेब में से बहुत आसान होता था ऐसे गले गले लोड ओके, तो रिकॉर्डिंग में जेंटलमैन हम अपना सबसे पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो था कि कम्युनिकेशन क्या है। तो हमने क्लास में इस बात पे कंसंट्रेट किया कि कम्युनिकेशन जो है वो दो एंड्स के दरमियान, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, इनके दरमियान में सोर्स कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। उस इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन इंजीनियर में इन्फो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सिग्नल्स जनरेट करेगा। और वो हमारा जो रिसीवर है वो इस सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली रिसीव कर लेगा। अगर मिसाल के तौर पे, अब आप कहेंगे एग्जैक्टली किसमें, मिसाल के तौर पे मैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज डाउनलोड कर रहा हूं, मैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज डाउनलोड कर रहा हूं, तो ये इमेज में एक बिट की भी खराबी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे अगर उस इमेज का साइज 10 गीगा बाइट्स है, इसका मतलब है कि 80 गीगा बिट्स है। इसका मतलब 80,000, 80 बिलियन अरब, 80 अरब बिट्स। अगर इसमें से एक बिट भी करप्टेड है, यानी एरर्ड है, यानी तब्दील हो चुका है, तो ये फाइल मेरे लिए किसी काम की नहीं। लेकिन अगर कोई वॉइस ट्रैफिक आ रही है और उस वॉइस ट्रैफिक में चंद बिट्स करप्टेड हैं, एरर्ड हैं, स्टिल थोड़ी सी एनॉइंस होगी, लेकिन कम से कम मैसेज पहुंच जाएगा। तो इस केस में अगर अप्रोक्सीमेट भी है तो इट इज गुड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये डेफिनेशन दी है हमें किसने, एग्जैक्टली एंड अप्रोक्सीमेट की शैनन ने। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन सोर्स और डेस्टिनेशन, शैनन ने ये नहीं बताया कि क्या वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हो, या एक एंड पाकिस्तान में हो और दूसरा एंड में भी यूएस में हो। तो इसका मतलब कि दरमियान में कोई ट्रांसमिशन, कोई चैनल होना चाहिए, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए, या कोई मीडियम होना चाहिए। अब अगर ये हमारे इन दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में ये सम एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये चाहता है कि सोर्स पूरा करे। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन,
हम ये ज्यूम करते हैं कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिले, कॉन्फिडेंशियलिटी मिले, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, लास्ट टू जेंटलमैन, इफ यू हैव समथिंग सीरियस डिस्कशन तो प्लीज बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करें ताकि ये भी आपकी अच्छी अच्छी बातों से फायदा उठा सकें। तो अदरवाइज, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी शख्स इसके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में यहां बैठ के आपके मैसेज को स्निफ कर ले, पकड़ ले, जो कि मुमकिन है, स्पेशली वायरलेस में तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस वक्त मेरा सिग्नल जा रहा है कहीं एक्सेस पॉइंट की तरफ, तो इस एक्सेस पॉइंट तक सिग्नल जाने के लिए रास्ते में कहीं भी, कहीं एयर है, कहीं भी सिग्नल जा सकता है। तो इसलिए स्निफ हो जाए, तो अगर वो उसको, अगर लेट करें कोई ऑडियो है और वो ऑडियो सुन ले, या कोई वीडियो है वो वीडियो देख ले, या कोई डेटा है वो उसको पढ़ ले, तो ये तो बहुत बड़ा सोर्स के लिए, डेस्टिनेशन के लिए एक समथिंग एनोइंग होगा कि जनाब मेरी चीज, मेरा समथिंग आई सेंड ऑन इंटरनेट एंड दैट हैज बीन लीक्ड। इसलिए ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका डेटा कोई स्निफ करने के बाद उसको आपके खिलाफ यूज कर सके, तो आप अपने मैसेज को, सोर्स को कहते हैं, आप अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर लें। क्या कर लें? इनक्रिप्ट कर लें। अब अगर आपको नहीं पता कि इनक्रिप्शन किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इनक्रिप्शन कैसे कहते हैं, जेंटलमैन एक काम तो करो, आप इसको बंद कर दें दरवाजा। लॉक करें बस। शाबाश, ग्रेट। क्योंकि मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था कि क्लास को आपने क्लास के तौर पे लेना है। ये इसका इसके मैंने कहा था कि नो मोबाइल ड्यूरिंग क्लास एंड ऑब्जर्व द क्लास टाइमिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब दिल चाहे आ जाओ, जब दिल चाहे चले जाओ, नहीं। क्लास इज सीरियस अफेयर एंड यू हैव टू टेक इट सीरियस। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, जेंटलमैन, मैं यहां पे एक एक साइट ओपन कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे AES ऑनलाइन इंक्रिप्शन। अब इस इंक्रिप्शन के लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या दो चीजें जरूरी हैं? एक, कोई इसको करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंक्रिप्शन कहते कैसे हैं। तो जेंटलमैन, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट ना रहे, बल्कि खुफिया टेक्स्ट बन जाए, जिसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इस अमल को कहते हैं इंक्रिप्शन। करके बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जस्ट एज एन एग्जांपल। लेकिन इसके लिए क्या दो चीजें चाहिए? एक, आपको कोई एल्गोरिथम चाहिए जो ये काम कर सके, और नंबर 2, आपको एक की चाहिए जो कि सिक्योर हो, जो कि किसी और को पता ना हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी ये कैसे काम करेगा। हमने मिसाल के तौर पे जनाब इसको ओपन कर लिया, और यहां पे ये देखें जनाब, आपको एक AES एल्गोरिथम हमने कौन सा चूज किया? AES स्टैंड फॉर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब कि हमने एक एडवांस इंक्रिप्शन का तरीका ढूंढ लिया। ओके, अब ये क्या कहता है? कहता है यहां पे आप अपना प्लेन टेक्स्ट लिखो। कौन सा टेक्स्ट लिखो? प्लेन टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे मैं यहां लिख लेता हूं, एहसान इज टीचिंग कंप्यूटर, CCN यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। और चलें ये भी लिख देता हूं, एट DCSE UET पेशावर।
DCSE UET पेशावर। ये मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप देखें तो इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो कि शायद मैं नहीं बताना चाहूं। एक तो मेरा नाम इसमें जा रहा है, नंबर 2 सब्जेक्ट का नाम जा रहा है, और नंबर 3 लोकेशन का नाम जा रहा है कि ये बंदा कहाँ पे पढ़ा रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी को, अगर मैं इसको ट्रांसमिट करूं और अगर कोई रास्ते में ये मैसेज मेरा पकड़ भी ले, यानी स्निफ कर ले, स्टिल ही मे नॉट बी एबल टू लिसन इट, वॉच इट। तो क्या करूं? मेरे लिए मैंने कहा, एक तो एल्गोरिथम हमने डिसाइड किया कि विच एल्गोरिथम आई एम यूजिंग, AES। और साथ ही वो कह रहा है कि जनाब आपको एक अदद सीक्रेट की देनी होगी। क्या देनी होगी? सीक्रेट की। जनाब मैं यहीं से कोई सीक्रेट की कॉपी कर लेता हूं, डेटा कम्युनिकेशन लेट करें, कॉपी कर लेता हूं, मेरी मर्जी के क्या होनी चाहिए। और यहां पे हमने डिसाइड करना है कि आपकी की का लेंथ क्या है। तो मैं 128 बिट ले लेता हूं जी। तो इसलिए मैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूं और इसको कहता हूं कि जी इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दो। तो जनाब ये मैंने कहा इनक्रिप्ट करो, वो कहता है नहीं जी आपकी सीक्रेट की में वीक है, प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट की आर वीक, हैक्स दिस और दिस डिराइव्ड फॉर स्ट्रॉन्गर। चलें हम यहां पे कुछ हम यहां पे कुछ @ डाल देते हैं, कुछ वो डाल दिया। कहता है कि जनाब बट गॉट 18 बाइट्स, तो 18 × 8 कितना बन गया? एक, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे चला जाऊं, 144। अच्छा, तो इसका मतलब थोड़े से डिजिट कम कर देते हैं इसमें से ताकि 128 बन जाए। तो हम COM को हटा देते हैं और फिर से कहते हैं इनक्रिप्ट करो। फिर कहता है कि जनाब इनवैलिड सीक्रेट की लेंथ 16 बाइट ऑफ दिस की बट गॉट 15, बस एक बाइट की कमी है। तो एक बाइट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम इसके सामने एक दफा फिर लगा देते हैं C, कैपिटल C लगा देते हैं और कहते हैं इनक्रिप्ट करो। तो देखें जी इसने इस टेक्स्ट को इसमें तब्दील कर दिया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को मीडियम पे छोड़ भी दूं और आप में से कोई इसको स्निफ कर भी ले, मैं ये आपके लिए यहाँ पे इसको वो कर देता हूं। तो इसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया। कैन यू बाय लुकिंग एट दिस कैन यू, इधर देखिए जी, बाय लुकिंग एट दिस इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप मालूम कर सकें कि इसके पीछे प्लेन टेक्स्ट क्या है? नो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप भी जाएं। शाबाश। बंद कर दो बच्चे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि नहीं पता चलता कि इससे क्या है, इस अमल को कहते हैं इंक्रिप्शन। अब अगर हम यही मैसेज मिसाल के तौर पे कॉपी करके और यहां डाल दें कि ये इनक्रिप्टेड मैसेज है, और अगर आपको की नहीं पता, आपको एल्गोरिथम का पता है कि AES है, की नहीं पता, तो कह रहा है की दो, मुझे की नहीं पता। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ यूं डाल देता हूं और कहता हूं डिक्रिप्ट करो, नहीं कर रहा।
कहता है कि जनाब नहीं है, कहता है कि जी आपको 16 बिट चाहिए थे, आपने 16 से 11 है तो 1 2 3 4 5 6 और भी कर दिए, डिक्रिप्ट करो। कहता है कि जी 17 हो गए हैं, चलें हम 16 चाहिए, एक कम कर देते हैं और डिक्रिप्ट करो। हमने की का लेंथ पूरा कर दिया लेकिन वो डिक्रिप्ट नहीं कर रहा, कहता है पैरामीटर मिसिंग, वही की चाहिए जो सोर्स ने इस्तेमाल की है। तो अगर मैं इसको वही की कॉपी कर दूं यहां से और यहां पे इसको पेस्ट कर दूं, यहां पे इसको पेस्ट कर दूं, तब जाके ये उसको डिक्रिप्ट करेगा। सर इसी सेम मेथड को आप दूसरे वेबसाइट पर डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर एल्गोरिथम सेम है, की सेम है, हर जगह करेगा। 128 मैसेज भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, साइज भी ठीक। एक दफा फिर यहां से सर इधर आपने जो है ना ये बेस 64 में जो उधर आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेट देख प्लेन टेक्स्ट बेस 64, ये बेस 64 कर दी। दूसरी साइड पे करके बता देता हूं, करेगा। आउटपुट तो प्लेन में होना चाहिए। हाँ जी, आउटपुट प्लेन में आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे करके दिखा देता हूं जनाब। टेक्स्ट था हमारा, मैं यही टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूं ताकि आपको ये ना हो कि जी नहीं टेक्स्ट का मसला है, कहाँ गया। ओके, नहीं वो तो अब उसमें सब कुछ चला गया, नो बड़ा मसला। हम यहाँ पे सिर्फ जी अब शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एहसान उल हक लिख देते हैं। और सीक्रेट की दे देते हैं। चले पहले यही देकर कोशिश करते हैं कि अब तो 128 बिट इसमें होता है नहीं होते वो देख लेंगे। और कुछ भी नहीं। तो हमने कहा इनक्रिप्ट करो, कहता है कि जी यू हैव प्रोवाइडेड 96 बिट, मुझे 128 चाहिए। तो कितने बिट कम है, 4 और 32 यानी 4। तो 1 2 3 4 और कहते हैं जी इनक्रिप्ट करो। ये हो गया। अब अगर इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को मैं आपको दे भी दूं तो इससे आप नहीं मालूम कर सकते कि इसके पीछे प्लेन टेक्स्ट जो है वो एहसान उल हक है। लेकिन अगर मैं ये वापस कर दूं इसको सिस्टम को कि इसी प्रोटोकॉल किसी एल्गोरिथम के, और इसको सीक्रेट की यही प्रोवाइड कर दूं, कंट्रोल सी, सीक्रेट की यही प्रोवाइड कर दी और इसको कहता हूं कि डिक्रिप्ट करो, तो देखें आपको एहसान उल हक वापस मिल गया। तो हमने इंक्रिप्शन भी की, डिक्रिप्शन भी की। तो आप इस साइट पे जाके अपने घर पे बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। की का पता किसी को नहीं चल सकता जब तक कि आप किसी को ना बताएं। सर अभी इसी इंक्रिप्टेड मैसेज को हम दूसरे वेबसाइट पे हाँ, जहां मर्जी करें, ये दो चीजें सेम रखें, एल्गोरिथम सेम और की सेम, हर जगह से चलेगा। ओके, अब आपको अगर हम ये बात क्लियर हो गई तो इसका मतलब है कि अगर आपने मांगा ये है, अगर आपने चलिए दोबारा बनाना पड़ेगा, आई थिंक मैंने तो उसको खत्म नहीं किया, लेकिन नहीं हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी आपको एक अदद सोर्स, एक अदद डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में ट्रांसमिशन सिस्टम, और ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट जिसमें से हमने एक कहा कि जी मे बी वो चाहता है कि आप इंक्रिप्शन करें ताकि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाए। ठीक, इसी तरह मिसाल के तौर पे नेक्स्ट थिंग, हमारा जो ये सोर्स है ये एनालॉग भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई एग्जांपल देगा कोई एनालॉग सोर्स की? जी
आपकी वॉइस एनालॉग है, आपको टेम्परेचर भेज रहे हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट्स हैं, सेंसर टेम्परेचर मेजर कर रहा है और सिस्टम को दे रहा है, तो सेंसर हमारा क्या हो गया, सोर्स। तो वो हमें कौन सा किस टाइप का डेटा दे रहा है, एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये होता है कि वेयर यू कैन हैव numerous values or you have infinite number of values possible, and among these infinite values the system is choosing any one. ऐसे सिस्टम को, ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग। अब और आपका सिस्टम आपका डिजिटल भी हो सकता है, जैसे समथिंग इज गिवन बाय माय कंप्यूटर, तो दैट इज अ डिजिटल डेटा। तो मैंने कहा कि जी आप इस डेटा को, जब मोस्टली हमारे पास जो डेटा होता है यूनिवर्स में, और दैट इज एनालॉग, लेकिन जब आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हो by using for example A to D converters, so what happens, it happens क्या होता क्या है कि lot of bits are generated, lot of bits are generated। अब ट्रांसमिशन सिस्टम के पास बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ को आसान टर्म में अगर मैं समझाऊं तो मैं कहूं कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी है, हर चीज जो है अल्लाह ताला की जात के अलावा हर चीज क्या है, लिमिटेड है, चाहे जितनी ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है। तो जेंटलमैन, अगर इसके पास लिमिटेड बैंडविड्थ है और मैं ह्यूज बिट्स जनरेट कर रहा है सोर्स, तो इसका मतलब है कि माइट बी आई एम वेस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, आई एम वेस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो क्या करें, हमने कहा जी कंप्रेस कर लो, डेटा को कंप्रेस कर लो। तो ट्रांसमिशन सिस्टम ने कहा कि मुझ पे डेटा भेजने से पहले ही उसको कंप्रेस कर लो ताकि ज्यादा लोगों का डेटा उसी कैपेसिटी से गुजर सके। इसी तरह थर्ड थिंग, मिसाल के तौर पे आप सब लोग दो टेक्नोलॉजीज बेइंतहा यूज करते हैं। वन इज योर जीएसएम, एनी आइडिया अबाउट जीएसएम? नो, दैट इज द everyone the world is using since 1991, and that is your 2G cellular networks। तो कोई आप में से ऐसा है जिसने आज तक सेलुलर नेटवर्क इस्तेमाल नहीं किया? सेलुलर नेटवर्क मीन दिस नेटवर्क, नहीं, लेकिन नॉन पीटीआई का है, लेकिन और कामों के लिए तो आप उसको, मिसाल तो एक फोन उन्होंने रखा होता है नॉन पीटीआई, लेकिन दो उन्होंने जेब में रखे होते हैं जो पीटीआई वाले होते हैं। समझ गया? तो कहने का मकसद ये है कि यू कोई मतलब ये वो वाला बंदा जो के कहे मैंने जिंदगी भर हेलो नहीं किया, तो मैं मान लूंगा, मानने में क्या हर्ज है। तो जेंटलमैन, हम कह ये रहे थे कि हमने कुछ एवरीवन हैज यूज्ड दिस, लेकिन अगर हमने कभी किसी को मैसेज थ्रू जीएसएम यानी फोन किया है, नंबर उसका मिलाया है, तो इन दिस केस दिस टेक्नोलॉजी इज आस्किंग जी योर बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल शुड बी फॉर एग्जांपल 900 मेगाहर्ट्ज। चले, इस पे तो आपने कहा कि जी मैं इतना शरीफ हूं कि मैंने कभी फोन इस्तेमाल ही नहीं किया, चले मान लेते हैं। अगर मान लें तो दूसरी तरफ आपने कभी वाईफाई भी यूज नहीं किया, ये भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हम कहें कि हमने वाईफाई यूज किया है, तो दैट इज आस्किंग यू दैट योर सिग्नल शुड बी एट 2.4 गीगा और 5.0 गीगा। इसका मतलब है कि, और मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज तक ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब है कि माई वॉइस इज इन किलोहर्ट्ज, यानी सिग्नल इज इन किलोहर्ट्ज, लेकिन सिस्टम कह रहा है कि इसको गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होना चाहिए। सिस्टम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कौन सा सिस्टम? ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि सिस्टम को, सोर्स को कहना पड़ेगा कि आप अपने सिग्नल को चेंज करो, एंड चेंज को टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं मॉड्यूलेट करो, मॉड्यूलेशन।
तो इसका मतलब है कि कम से कम सिग्नल इनक्रिप्ट होना चाहिए, सिग्नल कंप्रेस होना चाहिए, सिग्नल मॉड्यूलेट होना चाहिए। किसने कहा? ट्रांसमिशन सिस्टम ने कहा। ओके, वी एग्री। अगर ये चीज हम एग्री कर जाएं तो फिर मैं कह सकता हूं कि सोर्स तो ये नहीं कर सकता, सोर्स तो आप हैं। क्या आप अपने सिग्नल को मुंह से निकलते हुए वो इंक्रिप्टेड हो, मुंह से निकलता हुआ वो मॉड्यूलेटेड हो, मुंह से निकलते हुए वो कंप्रेस हो? नेवर पॉसिबल। तो व्हाट इज द सोल्यूशन है? हमने कहा द सोल्यूशन इज दैट वी शुड पुट ए another device here which should perform these tasks 1 2 3, and that is called transmitter. That is called transmitter. So what will happen? The source will give the signal, and the signal will be given to the transmitter, and transmitter will do different processing before sending it to the transmission system. अब प्रॉब्लम ये है, मिसाल के तौर पे आपका आपका सिग्नल आप किलो हर्ट्ज में नहीं है, गीगा हर्ट्ज में है। क्या ये डेस्टिनेशन इसको सुन सकता है गीगा हर्ट्ज में? नहीं। अगर ये इंक्रिप्टेड है तो किसको ये पढ़ सकता है, देख सकता है? नो। अगर ये कंप्रेस्ड है तो फिर भी नहीं पॉसिबल। इससे मतलब ये हुआ कि हमें एक डिवाइस चाहिए रिसीवर एंड पे भी, डेस्टिनेशन एंड पे भी, जो कि इन कामों के अपोजिट काम इधर भी करे, एंड वी कॉल इट रिसीवर। इसका मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम देगा रिसीवर को, रिसीवर उसको बैक ट्रैक करके वापस ला के डेस्टिनेशन के हवाले कर देगा। अगर इस बात से मेरे आप एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम से कम 5 चीजें चाहिए। 1 इज द सोर्स, 2 इज द ट्रांसमीटर, 3 इज द ट्रांसमिशन सिस्टम चैनल, 4th इज द रिसीवर, एंड 5th इज द रिसिपिएंट। तो कितने चीजें चाहिए आपको कम्युनिकेशन हासिल करने के लिए? मिनिमम 5। क्लियर? करें क्या क्वेश्चन? ये पूछ रहा था रिसीवर और रिसिपिएंट दूसरे का। रिसीवर ये है, रिसिपिएंट मैं हूं। समझ आ गई? गुड। तो जेंटलमैन, अगर इसी बात को हम यहां पे ले आए, यहां पे ले आए, तो देखें ये क्या रहा है कि मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसिपिएंट। और दरमियान में क्या होगा? चैनल होगा, मीडियम होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो ब्लॉक वाइज आप देख सकते हैं कि सोर्स गिव इट टू द ट्रांसमीटर, transmitter give it to the channel, channel is giving to the receiver, and receiver is giving to the recipient, destination, whatever you want to call it. अब जेंटलमैन, इसी को अगर मैं यूं भी दिखाना चाहूं, जी, तो देखिए मिसाल के तौर पे हमने यहां पे एग्जांपल ली। सोर्स क्या है? आपका कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर के आगे कोई मॉडेम लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल, जैसे बाज घरों में आजकल भी डीएसएल मॉडेम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो द मॉडेम यू मे कॉल इट ए ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर इज गिविंग टू ए ट्रांसमिशन सिस्टम which is some underground cables, some aerial cables, some wireless, some cables under the sea, which are called as submarine cables, and after this it will reach to the again a modem at the receiver end, and then the final destination, which is called recipient. क्लियर होगी मेरी बात? ओके। अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, तो हमने कहा कि जी हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कि हमारा सोर्स, जैसे मैंने अभी बताया, कि वो एनालॉग भी हो सकता है और वो डिजिटल भी हो सकता है, वो एनालॉग भी हो सकता है और वो डिजिटल भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे सोर्स जो है वो आपका सीआर है,
कौन है सीआर क्लास का? खुद भी हो गई। जी असिस्टेंट साहब, आपका क्या नाम है? अंकल साहब। फैसल। तो फैसल हमारा सोर्स है और ये फैसल वॉइस सिग्नल भेज रहा है। अब इस वॉइस सिग्नल की, ये सिग्नल है, इस सिग्नल की एनर्जी किस टाइप की है? इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है? अगर ये ऑप्टिकल होती तो ये बोलता तो रोशनियां जलती। अगर ये इलेक्ट्रिकल होता तो ये बोलता तो करंट लगती। इसका मतलब है कि इसकी आवाज वो जो है, वो आरडी, वो जो सिग्नल है वो साउंड एनर्जी है, जिसको एकॉस्टिक एनर्जी कहते हैं, एकॉस्टिक एनर्जी। अब अगर मैंने अभी बताया कि मीडियम या तो कॉपर है या फाइबर है या एयर है, तो अगर ये हमारे मीडियम्स हैं, इनमें से कोई एक मीडियम भी साउंड एनर्जी ले जाने की सलाहियत रखता है, कॉपर से आप कौन सा सिग्नल ले जाएंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फाइबर से कौन सा ले जाओगे? ऑप्टिकल सिग्नल। इसका मतलब है कि इस सिग्नल को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा either to the electrical or to the optical signal, and the device which do this task is called transducer. What it is called? ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर ने उसको मिसाल के तौर पे अगर कॉपर पे भेजना है तो उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, एयर के थ्रू भेजना है यानी वायरलेस के थ्रू भेजना है तो उसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, और अगर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए भेजना है तो उसने उसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, सिग्नल क्योंकि भेजना है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सुबह स्कूल यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो कहते हैं बच्चे नाश्ता कर लो ताकि आपकी एनर्जी बहाल हो जाए, इस तरह हम भी सिग्नल को भेजने से पहले क्या करेंगे, उसको एम्पलीफायर से पास करेंगे अगर वो एनालॉग सिग्नल है, और अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो उसको रिपीटर से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे? रिपीटर से। तो इधर पासिंग इट थ्रू दी, एंड दैट इज, हम किसको पढ़ रहे हैं? ट्रांसमीटर को। सोर्स ने अपना सिग्नल, वॉइस सिग्नल दे दिया, अब हमने ये वॉइस सिग्नल इस डिवाइस के हवाले कर रहे हैं। जब इस डिवाइस के पास पहुंचे तो उसने पहला काम क्या किया, उसने हमारी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। अब बिफोर सेंडिंग इट हमने उसको कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया अगर वो एनालॉग है, और अगर डिजिटल तो हमने उसको रिपीटर से रिपीट करवा लिया ताकि वो मजबूत सिग्नल, ताकतवर सिग्नल बन जाए। फिर क्या हुआ? अब लाजमी तौर पे, जैसे मैंने कहा, अगर लेट करें कि हम वाईफाई के थ्रू भेज रहे हैं तो हमें इस सिग्नल को 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चेंज करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? मॉड्यूलेटर और ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बनाएगा कैरियर, और ये कैरियर इस्तेमाल होगा मॉड्यूलेशन में, जिससे हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक भी? मुझसे पूछा करें। एम्पलीफायर, जैसे आप अभी अभी आज ट्यूसडे है, अगर आप दो चीजें से इसकी एग्जांपल दे सकता हूं। एक आपकी कुरान की क्लास होती है तो बहुत बड़ा हॉल है जहां पे आप लोग जाके बैठ जाते हैं, तो एक आलिम साहब जो हैं, खतीब साहब जो हैं, वो कुछ पढ़ते हैं और आप सबको आवाज आ जाती है, तो क्या खतीब साहब की आवाज इतनी तकड़ी है? नहीं। स्पेशली जो लोग, खवातीन जो हमारी यहाँ पे पढ़ती हैं, उनको तो वो नजर भी नहीं आते, वो तो किसी और हाल में बैठी होती हैं, लेकिन वहां पे क्या लगा होता है? स्पीकर लगा होता है। अब उस स्पीकर को देने से पहले हमने पीछे एम्पलीफायर लगाया होता है, तो एम्पलीफायर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देता है कि पूरी मस्जिद में वो आवाज आ जाती है। तो दैट इज द जॉब ऑफ द एम्पलीफायर। फिर इसके बाद हमने कहा कि जनाब उसको हाई फ्रीक्वेंसी में अगर भेजना है तो फिर हमें ऑसिलेटर चाहिए। ऑसिलेटर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मॉड्यूलेटर को देता है, और फिर मॉड्यूलेटर हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई पे ले जाता है। फिर आपने उसको ट्रांसमिट करने से पहले अगेन
आप उसको पावर एम्पलीफायर से गुजार के उसकी VI यानी कि वोल्टेज और करंट को इंक्रीज कर लेते हैं। एंड फाइनली अगर अगर वो वायरलेस है तो एंटेना से गुजारोगे, ट्रांसमिट करोगे, और अगर वायर्ड है तो कोई भी इंटरफेस होगी जो कि आप अपने डिवाइस में लगाओगे और वो वायर के थ्रू इसको आगे ले जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पूछ सकते हो, कह सकते हो कि भाई ये भी तो एक वायरलेस डिवाइस है, इसका तो एंटेना नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। देखें हाथ लगा रहा हूं, कहीं एंटेना नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप DSP लैब में चले जाएं तो जो ही दरवाजे के पास आप ऊपर दीवार पे देखें तो आप वहां पे एक डिवाइस लगा है जिसको कहते हैं एक्सेस रूटर। उसके आपको मल्टीपल एंटेना दिखाई देते। इसका मतलब है कि वहां पे आपको एंटेना दिखाई दे रहे थे, वो विजिबल थे। यहाँ पे आपको जो एंटेना नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो इनविजिबल है, यानी लेकिन है सही। कोई भी डिवाइस, वायरलेस डिवाइस, एंटेना के बगैर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो जब नहीं नजर आ रहा तो हम कहते हैं इम्बेडेड है। क्या है? इम्बेडेड है। तो जैसे मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप में अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कैमरा के करीब यहाँ पे कहीं एंटेना लगा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा, इम्बेडेड है। क्लियर हो गई जी? ओके। अब ट्रांसमीटर ने किसको देना है? चैनल को। नहीं, रिसीवर को नहीं, चैनल को, ट्रांसमिशन सिस्टम को, मीडियम को। तो जनाब आप देख रहे हैं कि मीडियम आपका, ये चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है, जिसको आप हार्ड वायर भी कहते हो। हार्डवेयर नहीं कह रहा, वायर कह रहा हूं। हार्डवेयर नहीं कह रहा, वायर कह रहा हूं। तार की और नंबर 2, इट कैन बी अनगाइडेड, जिसको हम सॉफ्ट वायर भी कहते हैं। वेयर नहीं, दैट द रीजन आई एम मेकिंग क्लियर। सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा, WA नहीं लिख रहा, वायर है, वायर वायर है। अब हार्ड वायर में कॉपर भी हो सकता है और फाइबर भी हो सकता है। अगर कॉपर है तो ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है और कोएक्सियल केबल भी हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल ये लिखा है TP। इसमें केबल जो होती है ट्विस्ट होती है। इसी तरह अगर फाइबर है तो प्लास्टिक का भी हो सकता है और ग्लास का, सिलिका का भी हो सकता है। इसी तरह अगर सॉफ्ट वायर है तो ये एयर भी हो सकता है, ये वाटर, सी वाटर भी हो सकता है, और ये फ्री स्पेस भी हो सकता है, यानी वैक्यूम भी हो सकता है। समझ आ गई जी? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपका चैनल केबल भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकता है। फिर अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर हम रिसीवर की तरफ चले जाएंगे। तो रिसीवर में सबसे पहली चीज जो इसको उठाएगी वो अंडरस्टैंडेबल है कि एंटेना पे रिसीव होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एंटेना को आके हिट करेगा, और वो एक लॉ जो कि आपने FSC में और मैट्रिक में पढ़ा है, जो कि क्या कहलाता था? फेरेडेज लॉ। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर पे आके स्ट्राइक करे, हिट करे, तो उसमें वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर उसने एंटेना को हिट किया, तो एंटेना में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट, क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया एंटेना पे। लाजमी तौर पे हो सकता है वो 100 किलोमीटर चल के आया हो, 50 किलोमीटर चल के आया हो। अब इसका मतलब कि वो कमजोर हो चुका है। तो हर कमजोर सिग्नल को ताकतवर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। तो अब सिग्नल दोबारा इस काबिल हो गया है कि मुख्तलिफ सर्किटरी पे उसको प्रोसेस किया जा सके। फिर क्या हुआ? सिग्नल तो गीगाहर्ट्ज में है, तो इसलिए आप उसको डीमॉड्यूलेट करके यू विल ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसमें सोर्स ने भेजा था, विच मे बी किलोहर्ट्ज, मे बी इवन हर्ट्ज, जो भी उसने।
लेकिन आपको पता है कि हर डीमॉड्यूलेटर के साथ ऑसिलेटर की जरूरत है, जैसे कि हर मॉड्यूलेटर के साथ ऑसिलेटर की जरूरत थी, डीमॉड्यूलेटर के लिए भी उसी तरह का ऑसिलेटर चाहिए। फिर आप उसको पावर एम्पलीफायर से, ताकि किसी कान पे उसने स्ट्राइक करना है या किसी स्पीकर पे जाना है, आप उसको पावर एम्पलीफायर से गुजारने के बाद उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में वापस देने का, मिसाल तो पे वॉइस थी या ऑडियो सिग्नल था, तो आप वापस उसको उसी हालत में ले आएंगे ट्रांसड्यूसर के जरिए। तो यूं आपके पास वो सिग्नल जो कि सोर्स ने भेजा था वो इस जगह पे ट्रांसड्यूसर के बाद हासिल हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, आपको रिसिपिएंट क्या हो सकता है, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा वो रिसिपिएंट आप भी हो सकते हैं, पर्सन। रिसिपिएंट जो है वो कोई लाउड स्पीकर भी हो सकता है, माइक के थ्रू आप दे दें लाउड स्पीकर को, या आप अपने कंप्यूटर को दे दें ताकि वो उसको स्टोर या प्रोसेस कर ले। तो यूं आज आपने ये सीख लिया कि कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह होता है, क्या होता है। जी किसे रिजेक्ट करेगा, किसे रिजेक्ट करेगा, ये क्या? हाँ जी, यहाँ पे एक चीज हमने फिल्टर में अभी रिसीवर में मिस की है, एंड दैट इज फिल्टरिंग। दैट इज फिल्टरिंग। तो आपके हर रिसीवर के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, और फिल्टर को पता होता है कि किसको गुजरने, फिल्टर का मतलब क्या है पहले तो ये बता दो। फिल्टर का मतलब होता है कि डिजायर्ड को गुजरने दे और अनडिजायर्ड को रोक ले। तो जैसे अभी आपने कहा कि मल्टीपल हमारे एंटेना के ऊपर मल्टीपल सिग्नल जाके स्ट्राइक करते हैं, जो कि लाजमी तौर पे एज पर द फेरेडेज लॉ इंड्यूस करेंगे वोल्टेज। तो फिल्टर उनमें से उस फ्रीक्वेंसी को गुजरने देगा जो कि आपके लिए पसंदीदा है, और जो आपके लिए नापसंदीदा है यानी अनवांटेड है यानी नॉइज है, उसको वो रोक देगा, रिजेक्ट कर देगा। चले मैं जल्दी से आपकी जाने तो नहीं चाहिए अटेंडेंस लेता हूं पहले। सेक्शन ये बताइए तुम कितने नहीं बताइए तो बस समीउल्लाह, Yes, sir. प्लीज बी क्वाइट। हाशिर अली, Yes, हमजा, yes, sir. कैसर, Yes, sir. इनाम, Yes, sir. अफजल, Present. मोहम्मद सालार, मोहम्मद हाशिम, Present. मोहम्मद अली, Present, sir. नईम, Yes, sir. हसनैन, Present, sir. मोहम्मद जवाद, Yes, sir. मोहम्मद उजैर, नादिरुल्लाह, Yes, sir. मोहम्मद रायान, शेहराम, Present. मोहम्मद फैसल, Present, sir. मोहम्मद हमाद, Absent. हमीद, Yes, sir. तलहा, तहा, Sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हसीब, आयान खान, मोहम्मद हसनैन, Present. सैयद